Today's speaker has been with Edelweiss Asset Management as our President and Chief Investment Officer. Over 25 years of experience in areas of products, business development in mutual fund and wealth management. As we engage in this insightful session with Mr. Pradeep sir, let us seize the opportunity to gain a valuable knowledge and perspective on ever-evolving world of mutual funds. Without further ado, please join me in welcoming Mr. Pradeep Bhattacharya sir. Thank you, and do show clapping sign on your Zoom. Thank you. Hello, everyone. Thanks for joining this Chai Pe Charcha. Oh, If you yes. may call it that way. Thank you, Tradeep sir. Thanks a lot once again. Thank you very much. And how do you want to do this? Do you want to sort of have a Q&A, or how do we? Whatever you feel comfortable. Q&A, I'm ready. Even if you're having some presentation, I don't mind. Whatever. So I think it is better to sort of go in a Q&A. I will maybe kind of make a few opening comments with most topical sort of event being the budget and the road thereafter. And I'm sure after, and I'm sure you are facing or you are getting questions on budget, markets, and whatnot. It is better to have a pointed session on that rather than me trying to give a overall big presentation at the end of which people kind of go on to do different things. Right. So I think if sorry, you wanted to say something? Yeah, please go ahead, sir. Please go ahead. So I would say that if I were sorry, sir, you have to unmute yourself. Sorry. Yeah, please. Yeah. So I was saying that if I were to kickstart the discussion with regards to what happened in the budget and the way forward, I would say that this budget was about balancing three things and brought out the difference between Modi 2.0 and Modi 3.0 very carefully. And if you observe, the three things were politics, economics, and markets. So the politics part is what made this budget or Modi 3.0 different from Modi 2.0. While Modi 2.0 was all about economy, markets, sort of industrial expansion, Modi, the first budget in Modi 3.0 had a good amount of dole outs for two states, Andhra Pradesh and Bihar. That shows that in Modi 3.0, whatever they do, to a certain extent, they will have to balance it out with regards to what coalition partners want or don't want. Thing in that though is the way it was done was not all that bad. What I mean by that is they could have given consumption dole outs of various different kind of magnitude which we can imagine, like it has been going around in West Bengal and the like. But what they decided to do is basically creation of airports, infrastructure, and more capex, like setting up of Amravati and stuff like that, which is more capex oriented, more infrastructure oriented, which ultimately would lead to long-term well-being of those states rather than just giving consumption dole out, which will probably boost consumption for a short while and then disappear away. So that's the first part which I would like to bring out, which is the difference between Modi 2.0 and Modi 3.0, is that this time, in terms of decision making, politics would be an important part to keep in mind. And also, moving on from budget, if you look at next 3 to 6 months, there are regional elections in 3 important states, and hence you are seeing some sort of populist measures which have come about from a rural standpoint and dole out standpoint in those states, because ultimately, the first job of a politician is to get elected before they can talk big things. So that's the politics part of the way forward in Modi 3.0 versus Modi 2.0. The second part is basically. Can I interrupt you?
सर कैन इंटरप्ट यू फॉर मोमेंट? तो सर मेरा एक छोटा सा Sure. रिक्वेस्ट रहेगा आपसे, थोड़ा हिंदी और इंग्लिश के कॉम्बिनेशन में अगर हम जाएंगे तो मेरे पार्टनर्स को भी और बाकी एचएनएस क्लाइंट सबको समझ में भी आए। बिल्कुल 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 या थैंक यू बिल्कुल बिल्कुल। थैंक तो यू। आप मुझे तो मैं ये जस्ट पहले पार्ट जो मैंने कहा पॉलिटिक्स को समराइज करूंगा इस तरीके से कि अ, ये जो बजट था ये ओवरऑल 3 चीजों को बैलेंस करते हुए रखा गया, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स और मार्केट्स। मोदी 2.0 में काफी हद तक फोकस इकोनॉमी और मार्केट्स में था, जबकि पॉलिटिक्स की उतनी जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि उनकी एब्सोल्यूट मेजोरिटी थी। इस बार मैंडेट थोड़ा सा फ्रेजाइल आया, आप और हमने शायद उतने वोट नहीं किए जितने करने चाहिए थे, या फिर जो भी हुआ वो जनादेश था। बट उसके मद्देनजर रखते हुए इस बजट में हमने जो देखा वो ये कि जो 2 स्टेट्स हैं, आंध्रा एंड बिहार, जो कि कोalition पार्टनर्स हैं, उनके लिए कुछ डोल आउट्स हुए। बट जो अच्छी बात ये है इन डोल आउट्स में भी वो ये कि जो ये डोल आउट्स हो, ये कंजम्पशन डोल आउट नहीं हुए कि मैंने आपको 100 रुपए दे दिए हर कंज्यूमर को तो वो एक बार के लिए स्पेंडिंग बढ़ी पर फिर चली गई। अच्छी बात ये है कि उनका भी जो इन्वेस्टमेंट, उनका भी जो डायरेक्शन था वो इन्वेस्टमेंट की तरफ था। वो था अमरावती को सेटअप करने के लिए, वो था पोर्ट्स, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट्स, इस तरीके की चीजों को बनाने के लिए, जिनका की एक दूरगामी परिणाम देखने को मिलेगा। और इसलिए मैं कहूंगा कि हालांकि पॉलिटिक्स ने एंट्री मारी वो मोदी 3.0 में, बट एंट्री मारी है, लंगड़ी नहीं मारी है ग्रोथ को ओवरऑल। ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट जो है वो इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का जो दारोमदार है वो मेरे ख्याल में जो इंटरिम बजट था उसमें काफी हद तक साफ हो गया था, इसलिए उससे ज्यादा बहुत कुछ करने की जरूरत न तो दरकार थी और न ही उन्होंने किया। तो लेकिन जब हम हमेशा नए डेटा पॉइंट ढूंढते हैं तो हमको लगता है कि अरे कैपेक्स के लिए कुछ नया नहीं किया। लेकिन अगर आप उसको थोड़ा सा पीछे चले जाएं और इंटरिम बजट को बजट के साथ जोड़ करके देखें, तब आप पाइएगा कि कैपेक्स का जो एलोकेशन था वो 11 लाख करोड़ था, जो कि एक अच्छा खासा ग्रोथ था प्रीवियस साल के मुताबिक। और उसका मतलब ये होता है कि कुल मिला के एक डबल डिजिट ग्रोथ देखने को मिलेगा जहां पे भी सरकार को ग्रोथ करना होगा और कैपेक्स रिलेटेड एरियाज। तो ये हो गया फ्रॉम ए कैपेक्स स्टैंड पॉइंट। इसको छोड़ करके इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से जो इस बार खासा ध्यान रखा गया वो ये हुआ कि रूरल कंज्यूमर और जॉब क्रिएशन को एक थोड़ी सी प्राथमिकता दी गई। और ये मुझे लगता है ये अच्छा संकेत है। अच्छा संकेत इसलिए है क्योंकि एक जो क्रिटिसिज्म हुई थी मोदी 2.0 में कि साहब ने बड़ी बड़ी बातें तो की, बड़ी बड़ी अनाउंसमेंट तो किए, लेकिन बॉटम एंड ऑफ द पिरामिड में बहुत ज्यादा अंतर देखने को नहीं मिला। इसलिए इस बार जो अपफ्रंट उन्होंने वायदे किए वो रूरल कंज्यूमर को लेके, मैन्युफैक्चरिंग में जॉब क्रिएशन को लेके, इस तरीके के कुछ ऐसे मेजर्स अनाउंस किए गए जिससे ये लगे और ऐसा हो कि थोड़ा सा एक्चुअल जॉब क्रिएशन बढ़े, जो कि मेरे ख्याल में जो इकोनॉमी की दरकार भी है। आपने सुना होगा और पढ़ा होगा कि काफी सालों से कोविड से जब हम बाहर निकले हैं तब हम एक के शेप रिकवरी की बात करते रहे। इसलिए ये मेजर जो था ये इम्पोर्टेंट था होना, क्योंकि अगले 4-5 साल में अगर ये रिकवरी थोड़ी सी ब्रॉड बेस्ड होती है तो एक तो गवर्नमेंट का स्टैंड वो मजबूत होगा और दूसरा इकोनॉमिक रिकवरी जो है वो और स्ट्रांग बन जाएगी। अच्छा, ये तो हो गए इकोनॉमिक्स के रिलेटेड अच्छे मेजर्स। अब कुछ तकलीफ वाले मेजर्स भी आए, जैसे और एक और अच्छा मेजर वो ये था कि जो कस्टम्स ड्यूटी हुआ वो 12 से 5 कर दिया गया, जिससे कि गोल्ड रिटेलर्स और गोल्ड रिलेटेड जगहों में काफी हद तक जो एक तस्करी होती थी, जो स्मगलिंग होते था, जो काफी अनऑर्गेनाइज का जो प्राइस डिफरेंशियल था वो कम हो गया। उससे ऑर्गेनाइज रिटेलर्स को आगे चल के पॉजिटिव होगा, आपको टाइटन वगैरह के शेयर प्राइस में दिखा भी। अब इसके बाद जो कुछ नेगेटिव्स हैं वो ये कि देखिए आपको और हमारे लिए कैपिटल गेन्स टैक्स जो है वो बढ़ा के 12.5% की गई। इसलिए जब ये अनाउंसमेंट हुआ तब लोगों ने काफी इसको पहले नेगेटिवली लिया, लेकिन उसके बाद आपने देखा होगा कि मार्केट संभल गया। क्यों संभला? इसके 2 कारण। एक तो ये कि 10 से 12.5% हुआ, लेकिन एक बार में साहब ने सारे एसेट क्लासेस को एक ही समतल जमीन पर लेकर आके छोड़ दी। अब जब आप रियल एस्टेट, डेट और ये सबको एक समतल जमीन पे लाएंगे और आप पाइएगा कि आउटलुक जो है अर्निंग्स के साथ काफी दुरुस्त है,
तो लोगों का ध्यान इक्विटीज की तरफ वैसे ही ज्यादा बढ़ जाएगा। तो एक्चुअली ये नेगेटिव ना होते हुए ओवर टाइम फ्लोज के लिए शायद ये पॉजिटिव डेटा पॉइंट। और एक्चुअली तब से अगर आप फ्लोज के बारे में देखें तो एक पॉजिटिव ही रुझान अपने को देखने को मिला। दूसरी बात, कोई भी इन्वेस्टर, जैसे आप भी अपने इन्वेस्टर्स को बोलते होंगे या आप भी इन्वेस्ट करते होंगे, कोई भी 1 साल के लिए या 2 साल के लिए नहीं आता है। सब हम लोग सभी यही कहते हैं कि आप इक्विटीज में आइए 3 से 5 साल के व्यू लेकर के या उससे ज्यादा। True. तो अगर आप 5 साल का व्यू लेके चले तो 2.5% ज्यादा टैक्स, मतलब हुआ 50 बेसिस पॉइंट ज्यादा टैक्स सालाना। तो अब आप मुझे एक इन्वेस्टर दिखा दीजिए जो आज के ऑडियंस में है जिनका के रिटर्न आप बोलिएगा कि 50 बेसिस पॉइंट साहब आपका कम हुआ सालाना, तो आप मत आइए। बहुत कम लोगों का इससे डिसीजन मेकिंग चेंज होगा, मेरा ऐसा मानना है। Right. तो इसलिए एक छोटा सा नेगेटिव स्टेप शॉर्ट टर्म में, लेकिन एक बहुत बड़ा पॉजिटिव स्टेप लॉन्ग टर्म में मेरे ख्याल में लिया गया, रैशनलाइजेशन ऑफ कैपिटल गेन्स टैक्स को ध्यान में रखते हुए। तीसरी बात ये हुई कि जो एफएनओ में जो हो रहा है उसको थोड़ा सा रेन इन करने के लिए उन्होंने एसटीटी और कुछ टैक्सेस वगैरह बढ़ाए। True. ये मेरे ख्याल में एक सेंसिबल स्टेप मैं कहूंगा। वो इसलिए क्योंकि अगर आप इसको थोड़ा बड़ा पिक्चर तरीके से देखें तो जैन मार्च क्वार्टर में जब रेगुलेटर को ये लगा कि मिड और स्मॉल कैप में थोड़ी सी अतिशयोक्ति हो रही है, तो उन्होंने आकर के जो है एक बार म्यूचुअल फंड्स को डिस्क्लोज करने बोला डेटा कि आपके अंदर में रिस्क कितना है वो सबको बता दीजिए। तो थोड़ा सा एक रेन इन हुआ वहां पे, हालांकि मार्केट्स वहां से ऊपर ही है, बट फिर भी थोड़ा सा उन्होंने लोगों को रिस्क के बारे में सतर्क करवाया। उसी सॉर्ट ऑफ सत्र में अगर आगे बढ़ते हुए एफएनए को उस नजरिए से देखें तो आप पाएंगे कि जो ऑप्शंस में जो शॉर्ट ट्रेडर्स हैं, जो स्मॉल ट्रेडर्स हैं, छोटे जो ट्रेडर्स हैं, उनका जो काफी नुकसान हो रहा था, ये माफ कीजिएगा ये शब्द के लिए सट्टाबाजी में, वो जो है उसमें थोड़ी सी कमी लाने के लिए थोड़े बहुत टैक्सेस वगैरह बढ़ाए गए। मेरे ख्याल में अगर आप हिस्ट्री में देखें पिछले 10 साल में जितने बार भी लॉट साइज बढ़ाया गया या एसटीटी बढ़ाया गया, उसके बाद वहां से लेजिटिमेट वॉल्यूम्स बढ़े हैं और कहीं गुणा बढ़े हैं और इन्वेस्टर्स भी और बढ़े हैं। तो मेरे ख्याल में ये जो स्टेप है ये लेजिटिमेट बिजनेस को ज्यादा बढ़ावा देगी और जो स्पेकुलेशन है उसको कुछ हद तक कम करेगी, जो कि अल्टीमेटली एक रेगुलेटर कह लीजिए और या फिर एक गवर्नमेंट कर लीजिए, उनका मेन काम जो है वो यही है। तो ये हो गई इकोनॉमिक्स और थोड़ी बहुत मार्केट्स की बात, जिसको कि देखा जाए तो जो ओवरऑल बजट का एक ऑब्जेक्टिव तरीके से मूल्यांकन किया जाए तो मेरे ख्याल में देखने को ये मिलेगा कि बहुत ज्यादा कुछ चेंज नहीं हुआ, थोड़ा आगे थोड़ा पीछे, कुल मिला के एक अपने को पॉलिसी कंटिन्यूटी देखने को मिली कि जो कैपेक्स का पहले ग्रोथ का रुझान था अभी भी वही है, थोड़ा बहुत जॉब क्रिएशन की तरफ रुख देखने को मिला और थोड़ा बहुत पॉलिटिक्स देखने को मिला, जबकि उनको अपने कोalition पार्टनर को साथ में चलने के लिए उन्होंने किया। तो मैं नेट नेट बजट से अगर मैं आपको 10 में से मार्क्स देने के लिए आप मुझे कहेंगे तो मैं 7 या 8 दूंगा। मोटा मोटी मार्केट का भी वही समझ है और वहां से गाड़ी आगे चल पड़ी। अब वहां से गाड़ी आगे जब चलती है तब दो चीजें दिमाग में आती है। पहली बात ये कि अगर आप साल का पहला हाफ देखें, हम लोग ऑलरेडी बैठे हुए हैं आज 29 जुलाई, आधा साल साहब निकल गया। ये आधे साल में मेजोरिटी जो अगर हमारा फोकस देखें आप, ये काफी मैक्रो और पॉलिटिक्स ड्रिवन रहा। पहले हम ये डिसाइड कर रहे थे कि मोदी जी आएंगे कि नहीं आएंगे, फिर ये डिसाइड कर रहे थे कि आएंगे तो क्या मेजोरिटी से आएंगे, फिर थोड़ा बहुत आगे पीछे हुआ पर नेट नेट मोदी जी भी आ गए, उनकी एक पॉलिसी की आपको प्रतिकृति भी सामने देखने को मिल गई। अब इसके बाद की जो दारोमदार है ये पॉलिटिक्स से कम अर्निंग से ज्यादा डिसाइड हो। तो इसलिए जैसे कहते हैं मुल्ला की दौड़ मस्जिद, वापस हम घूम के आ गए हैं अर्निंग्स की तरफ। और अर्निंग्स की तरफ जो हमारा ख्याल है वो ये है कि अगर आप मीडियम टर्म ये जो रिजल्ट सीजन है उसमें अगर आंकड़े देखें तो बहुत तेजी कुछ ज्यादा हुआ नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा मंदी भी नहीं हुई। इस क्वार्टर को मैं एक ट्रांजिशन क्वार्टर की तरफ से देखता हूँ। वो इसलिए क्योंकि इस क्वार्टर में इतना बड़ा एक इलेक्शन हुआ, उसमें काफी लोग पॉलिटिशियन, गवर्नमेंट या फिर काफी बिजनेसेस थोड़े से डिस्ट्रैक्टेड होते हैं, जबकि लोगों का मैन पावर है कुछ इधर से उधर हो जाते हैं। तो इसलिए बिजनेस पे पूरा फोकस ना होते हुए गवर्नेंस पे फोकस, तो इसमें थोड़ा सा बिजनेस मोमेंटम थोड़ा वैसे भी स्लो
दूसरी बात, इस बार ये जो क्वार्टर है अप्रैल में जून, ऐसे आपको मालूम ही होगा कि क्या बोलते हैं, बड़ी जोर की गर्मी पड़ी थी, उसके लिए काफी सेक्टर्स में जितना ग्रोथ होना चाहिए था उतना शायद नहीं हुआ, और वैसे ही आंकड़े आपके सामने आएंगे। लेकिन जो पॉजिटिव बात ये है कि जैसी कंपनीज आके अपनी साल भर की जो गाइडेंस है वो हमारे सामने रख रही है, उनसे ये मालूम पड़ रहा है कि उनका ग्रोथ प्लान बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ। Okay. जो पहले 4 क्वार्टर में होना था वो हो सकता है बंच अप होके थोड़ा सा 3 क्वार्टर की तरफ हो, लेकिन अर्निंग्स ग्रोथ का आउटलुक अभी भी दुरुस्त है, जो हमारे लिए सबसे बेहतर साइन है मेरे हिसाब से। तो अर्निंग्स अगर दुरुस्त हो तो मोटा मोटी शेयर प्राइस में अगर थोड़ी बहुत करेक्शन हो भी जाती है तो वो धीमे धीमे वापस आ ही जाती है। तो जब ये अर्निंग्स दुरुस्त है, थोड़ा बहुत अगर करेक्शन जैसे अपने को देखने को मिला, एक करेक्शन हुआ हल्का सा, फिर हम वापस आ गए अपने ही धुन में, वही अर्निंग्स के धुन में। तो जब अर्निंग्स के आउटलुक दुरुस्त हो, फिर बात होती है कि कहाँ अर्निंग्स दुरुस्त ज्यादा हो गए एज कम्पेयर टू अदर्स। तो उसमें मैं कहूंगा कि देखिए, सेक्टर लीडरशिप जो है वो मुझे चेंज होता नहीं दिखता। उल्टा जो मुझे दिखता है अगले 6, 12, 18 महीने में थोड़ी बहुत ये जो रैली है, ये जो शेयर प्राइस का मूवमेंट है, ये ब्रॉड बेस होता हुआ देखता हूँ। और ब्रॉड बेस इसलिए कि जैसे कैपेक्स है तो कैपेक्स के जो शेयर्स हैं, कैपेक्स रिलेटेड जो शेयर्स हैं वो अपने हिसाब से चलेंगे, कहीं अर्निंग्स जहाँ ज्यादा आएंगे वो बेहतर करेंगे, जो उतने ज्यादा नहीं आएंगे वो रुक जाएंगे, बट कैपेक्स का जो थीम है वो अभी भी बरकरार रहेगा। लेकिन इस वजह यहाँ से दो नए सेक्टर जो जहां हमने भी अपने पोर्टफोलियोज में ऐड किए हैं पिछले 3 महीने में, और जो मेरे ख्याल में शेयर प्राइस मूवमेंट के हिसाब से पॉजिटिव डायरेक्शन में ऐड हुए हैं, वो है आईटी और एफएमसीजी। ये दो इलाके ऐसे हैं जहाँ पे कि पिछले 1 साल में अगर आप अर्निंग्स का आंकड़ा लेखा जोखा देखें तो ये अर्निंग्स वहां पे थोड़ी सी कमजोर रही। लेकिन अब जो कंपनीज से हम लोग वार्तालाप करते हैं, जो उनकी प्रतिक्रिया हम सुनते हैं, उससे जो समझ में पड़ता है वो ये है कि अर्निंग्स, जिसको हम कहते हैं बाउंसिंग अराउंड द बॉटम हो रहा है। मतलब अभी यहाँ से नीचे नहीं जा रहे हैं, ऊपर भी उतने तेजी से नहीं जा रहे हैं, बट एक स्टेडी तरीके से अगले 12 से 18 महीने में ऊपर जाने का अंदाजा है। और ये शेयर प्राइस के लिए, शेयर प्राइस को बने और शेयर्स को एक्यूमुलेट करने के लिए एक अच्छा साइन है। ये हमने थोड़ा सा पहले पढ़ लिया था, इसलिए 3 से 6 महीने में अगर आपको ध्यान हो तो हमने एक टेक्नोलॉजी फंड भी लॉन्च करी थी, और अभी भी हमारे सारे पोर्टफोलियोज में टेक्नोलॉजी के जो शेयर्स हैं, वो सेक्टर का जो हमारा वेटेज है वो बेंचमार्क के मुताबिक ज्यादा है, तो मतलब हम लोग ओवरवेट है, और ये एक रीसेंट एडिशन। दूसरा है एफएमसीजी। अच्छा, इसमें चाहे आप स्टेपल्स ले लें, जो कि मतलब चाय बिस्किट वाले कंपनीज, या फिर डिस्क्रिशनरी ले लें, ये दोनों जगहों पे मेरे हिसाब से जहाँ की ये बारिश का जोड़ा बहुत पॉजिटिव एक इम्पैक्ट पड़ेगा, इन जगहों पे हम थोड़ा सा वेटेज अपना बढ़ाए हैं। तो एफएमसीजी एक दूसरा सेक्टर है जहाँ पे कि अगर आप पिछले 12 से 18 महीने के अर्निंग्स देखें तो वीक थे, लेकिन आगे चल के जैसे जैसे मौसम, बारिश का हाल बेहतर हो, जैसे फार्म इनकम की सूरत हाल थोड़ी सी बेहतर होती है, वैसे यहाँ पे भी बेहतर ग्रोथ देखने को मिलेगा। तो कैपेक्स, पावर, डिफेंस ये अपने हिसाब से चलेंगे, और ये दो ओवरऑल उसमें ऐड हो गए। तो थोड़ा बहुत एक ब्रॉड बेसमेंट बेसिंग देखने को मिली है सेक्टर्स में, जो मेरे ख्याल से ओवरऑल मार्केट्स के लिए पॉजिटिव हो। अब इससे पहले कि मैं क्वेश्चन आंसर की तरफ ध्यान करूं या जो भी आपके सवाल हो बोलूं, थोड़ा सा वैल्यूएशंस के बिना बात किए अपने कमेंट्स को एंड करना शायद ठीक नहीं हो। तो मेरे ख्याल में वैल्यूएशंस को अगर दो भाग में डिवाइड करें, एक है लार्ज कैप और दूसरा मिड एंड स्मॉल कैप। तो जो मेरे को समझ आया है वो मैं आपसे कहना चाहूंगा ये कि पिछले 5 साल में लार्ज कैप में जितने कंपनीज की अर्निंग्स ग्रोथ हुई है, उतने ही हिसाब से शेयर प्राइस चले। कहने का मतलब ये कि जो वैल्यूएशन प्राइस रेंज है वो जो 5 ईयर एवरेज है उसके हिसाब से ठीक तरीके से चल रहे हैं, माने पार है, ना महंगे हैं ना बहुत ज्यादा सस्ते हैं, जो कि एक अच्छा साइन। दूसरी तरफ अगर आप मिड और स्मॉल कैप को साथ में देखकर देखें तो वहां पे वैल्यूएशन थोड़े से ज्यादा है, 20 से 40% हिस्ट्री के मुताबिक ज्यादा है। तो इसलिए ये जो स्पेस है मिड एंड स्मॉल कैप स्पेस में थोड़ी सी सिलेक्टिव रहने की जरूरत है। वो इसलिए क्योंकि वैल्यूएशन थोड़े से ज्यादा है, लेकिन
जो लोग काफी हद तक वैल्यूएशन देख के पीछे बैठ जाते हैं, जो नहीं समझ पाते हैं, वो ये कि यही वो एरिया है जहाँ पे अर्निंग्स ग्रोथ बहुत धुआंधार तरीके से हो रही है। इतना कि मिड और स्मॉल कैप की जो अर्निंग्स है वो लार्ज कैप के मुताबिक के सामने करीबन डबल गति से चल रही है। तो जब ऐसा माहौल हो तो इन्वेस्ट करने के लिए देखिए 2-3 टाइप के पोर्टफोलियोज काफी बेहतर बनते हैं, क्योंकि उसमें क्या है कि आप फंड मैनेजर्स को थोड़ा लीवे देते हैं अक्रॉस ऑल दीज 3 सेगमेंट्स ऑपरेट करने के। तो ये कैटेगरी हुए जैसे फ्लेक्सी कैप फंड या फिर मल्टी कैप फंड, इस तरीके के जो फंड है वो आपको एक कंजर्वेटिव तरीके से भी रन करने का मौका देते हैं, और जहां आगे चल के थोड़ी वो वैल्यूएशन ठीक लगे, अर्निंग्स ग्रोथ बेहतर हो, सिलेक्टिव रह के मिड और स्मॉल कैप में भी हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो हमारे तो वैसे तो सब फंड्स हैं, और सब फंड्स मेरे हिसाब से अगर आप परफॉर्मेंस देखिएगा तो अच्छा ही कर रहे हैं अपने हिसाब से। लेकिन अगर आप मुझे चूज करने बोलिएगा तो अगर आप कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं तो मैं कहूंगा कि आपके लिए शायद फ्लेक्सी कैप फंड ठीक रहेगा। अगर आपके रीजनेबल रिस्क एपेटाइट है तो मैं कहूंगा मल्टी कैप फंड आपके लिए ठीक रहेगा। और अगर आप मान लीजिए एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं, आपका आउटलुक 5 से 10 साल है, तब मैं आपको इंगित करूंगा हमारे मिड कैप पोर्टफोलियो की तरफ, जो कि मेरे ख्याल में काफी अच्छे से पोजीशन है इस अपॉर्चुनिटी को कैप्चर करने की। तो यही मेरे प्रिपेयर्ड कमेंट्स से, आप जैसा आप चाहें। थैंक यू सर। तो थैंक यू वेरी मच सर, आपने पूरा बजट बहुत ही अच्छे से नरेट किया है हम सबको। मेरे कुछ क्वेश्चंस है, थोड़ा सा बहुत ही आम क्वेश्चन है और ये हमको समझने के लिए आसानी पड़ेगी कि हाउ एक्चुअली। निमिष भाई थोड़ा मैं आपको म्यूट करना चाहूंगा प्लीज, आप थोड़ा सा एक बार देखिए। सर मेरा पहला क्वेश्चन ये, पूरा बजट जो है जहां से चालू किया था आदरणीय फाइनेंस मिनिस्टर ने कि गरीब महिला फार्मर मतलब किसान और यूथ, तो GMFY मैं बोलता हूँ इनको। और साथ में इन्होंने क्या किया कि स्किल डेवलपमेंट के लिए 2 लाख करोड़ उन्होंने स्किल डेवलपमेंट के लिए दिया, और एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट के लिए उन्होंने 1.4 करोड़ दिया। अब ये दो चीजों को मैं थोड़ा कनेक्ट कर रहा हूँ कि इससे लोगों के हाथ में पैसा तो जाएगा, बट इससे क्या इन्फ्लेशन नहीं बढ़ेगा, और इसका GDP पे कितना असर होते हुए आपको नजर आ रहा है? बहुत सही सवाल, इसलिए मैं आपके शो में हमेशा आने के लिए तत्पर रहता हूँ, क्योंकि जो एकदम मुद्दे वाले सवाल है वो आपसे आते हैं। सो बात आपकी सही है। देखिए, जब भी क्या बोलते हैं लोगों के हाथ में पैसा जाएगा तो इन्फ्लेशन तो आएगा। लेकिन अगर आप इसको ऐसे सोचें कि आप इन्फ्लेशन चाहिए रखना चाहेंगे कि डिफ्लेशन, तो आपका उत्तर होना चाहिए इन्फ्लेशन। क्योंकि इन्फ्लेशन जब भी होता है मतलब कंट्री में कुछ अच्छा हो रहा है, तभी प्राइसेस बढ़ रहे हैं। अगर कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, जब जैसे जापान में पिछले 2 दशक से हो रहा है, तो प्राइसेस गिरते ही जा रहे हैं। जब प्राइसेस गिरते हैं तब कोई कुछ नया नहीं करता है साहब, चाहे कुछ भी कर लीजिए। तो आपकी बात सही है कि अगर मान लीजिए इन पॉकेट्स में एम्प्लॉयमेंट, और इन पॉकेट्स में अगर मान लीजिए रूरल की तरफ अगर थोड़ा सा एम्प्लॉयमेंट बढ़ा दें तो कुल मिला के इन्फ्लेशन बढ़ेगा। लेकिन अगर आप इसको ऐसे देखें कि जो एक मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है ना रूरल इकोनॉमी का, वो ऑलमोस्ट 2 to 3 टाइम्स होता है। ओके। इसका मतलब ये कि ये सेक्टर में जब आप ग्रोथ कीजिएगा तो इसके एंसिलरी सेक्टर में 3 गुना आपके ग्रोथ होगी। उसको अगर आप जोड़ के देखें तो इन्फ्लेशन टोटल ग्रोथ के सामने ज्यादा नहीं होगा। ओके। तो कहने का मतलब ये कि इन्फ्लेशन बढ़ेगी बट ग्रोथ उससे ज्यादा बढ़ेगी। तो जो रियल टर्म में हम लोग देखते हैं इन्फ्लेशन, और रियल टर्म में जो ग्रोथ देखते हैं, वो नेट नेट पॉजिटिव होगा। रियल ग्रोथ मतलब नॉमिनल ग्रोथ माइनस इन्फ्लेशन। तो अगर ग्रोथ ज्यादा बढ़े इन्फ्लेशन के बनिस्बत, तो हम कहेंगे कि रियल ग्रोथ ज्यादा होगा, जो कि सारे इकोनॉमिस्ट कोट करते हैं। सर एक और क्वेश्चन है, ये करने से क्या कितने परसेंटेज ऑफ पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी है कि रेटिंग अपग्रेड होंगे या रेटिंग डाउनग्रेड होंगे? बिकॉज हम लोगों के हाथ में पैसा देते हैं तो कहीं ना कहीं फिस्कल डेफिसिट और बढ़ जाएगा, और गवर्नमेंट के पास कितना पैसा है ये एक अलग कहानी है जिसमें मैं जाना नहीं चाहता हूँ। फिस्कल प्रूडेंस की उन्होंने बात तो करी है, लेकिन रेटिंग के बारे में कुछ बात नहीं करी। तो आपका क्या विचार है इसमें? मेरा मानना ये है कि ये इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये गवर्नमेंट के इस गवर्नमेंट के का जो हाथ है, ये बार तो खुले हुए इनमें। वो इसलिए क्योंकि आरबीआई ने एक डिविडेंड दे रखा था करीबन 50 बेसिस पॉइंट ऑफ जीडीपी का गवर्नमेंट, जो कि गवर्नमेंट किसी भी तरीके से स्पेंड कर सकती है। तो ऑलराइट। उन्होंने क्या किया, उन्होंने
करीबन बेसिस पॉइंट इसमें से पॉपुलिज्म में स्पेंड किया। आंध्र प्रदेश को दिया, बिहार में दिया, और जो 22 बेसिस पॉइंट है वो उठा करके उन्होंने फिस्कल प्रूडेंस में लगा दिया। तो उससे हुआ क्या कि आपका फिस्कल डेफिसिट भी कम हो गया, साथ में थोड़ा जो कोएलिशन पार्टनर्स का भला भी हो गया, और जो आपके कैपेक्स ग्रोथ आपने इंटरिम बजट में अनाउंस करी थी वो भी बरकरार रही। तो इसलिए मैं कह रहा था कि इस बार जो शुरुआती तौर पे मैंने कहा कि इस बार गवर्नमेंट ने इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स और मार्केट्स तीनों को एक बैलेंस करके एक बजट दिया है, जो कि मोटा मोटी मेरे ख्याल में ठीक ठाक बजट है, एक ना पर बहुत कैपिटा पॉजिटिव ना इनकम, बहुत नेगेटिव। एक पर कैपिटा इनकम क्या डिफरेंस आपको नजर आता है अगले 3 से 5 साल में, कि जो आज का पर कैपिटा इनकम है उसमें कितने % का एडिशन आप देखते हैं सर इस बजट के वजह से? नहीं, देखिए, इस बजट के से मैं को बहुत ज्यादा इस खेमे में महत्व नहीं दूंगा। तो आपके दर्शकों के लिए मैं ये बता दूं कि आज के डेट में अगर आप पर कैपिटा इंडिया जीडीपी का देखें तो वो 2000 के रेंज में, 2000 से 3000 के बीच में है शुरुआती तौर पे। वहां ये वहीं पे है जहां पे कि चाइना 2007 में होता, और उसके बाद जो हमको एक कंजम्पशन में ग्रोथ देखने को मिली थी, बिकॉज चाइना में काफी अच्छा खासा इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ भी हुआ उसके बाद से, और साथ में अपने को कंजम्पशन भी ग्रोथ देखने को मिला। तो इसलिए उसके बाद पर कैपिटा जीडीपी वहां से उनका अगले 10-15 साल में डबल होगी। तो अगले 3-5 साल की तो मैं बात, और 1 या 2 साल की तो बात मैं नहीं करूंगा, लेकिन अगर आप 10 साल में देखें तो मेरे ख्याल में जो पॉलिसीज इन्होंने अनाउंस करी है, अगर उस पथ पे हम डटे रहे तो मेरे ख्याल में अगले 10 साल में 2 चीजें होंगी। एक तो पर कैपिटा जीडीपी जो 2 के खाने में है वो 4 के खाने में जाएगी, और दूसरी बात वो ये कि हमारा जो इकोनॉमिक पोजीशन है, जो हम 5वें नंबर पे आते हैं वो हम 30वें नंबर पे जाएंगे, तीसरे पायदान पे चले जाएंगे। ये सबसे ऊपर होगा यूएस या चाइना, और तीसरे नंबर पे हम। आज के डेट में हम 5वें पे आते हैं। सर कुछ सेक्टर स्पेसिफिक आ रहा हूँ कि इंफ्रा, रिन्यूएबल, डिफेंस, अर्बन हाउसिंग, ये 3 सेक्टर, इसके अलावा ईवी की भी कुछ बात हुई है। तो आपको क्या लगता है कितना इम्पैक्ट ईवी का? तो हमारे पास बेसिकली अभी तो पूरा का पूरा इकोसिस्टम भी नहीं है। सो हाउ यू लुक एट द सेक्टर स्पेसिफिक थिंग्स इन दिस, ये इस बजट में कैसे देखते हैं आप? देखिए, अभी जो गवर्नमेंट डील कर रही है और हम लोग जो डील कर रहे हैं वो आज आपके सामने, आप मतलब आप और हमारे सामने, कंज्यूमर के सामने केवल ईवी ही एक ऑप्शन नहीं है। अगर आपने नोटिस किया होगा कि पिछले 1 महीने के अंदर में बजाज ऑटो ने एक सीएनजी बाइक लॉन्च करी, सामने से हमें हाइब्रिड का भी एक कुछ मॉडल्स लॉन्च हुए हैं पिछले 1 महीने के अंदर। तो कुल मिला के एनवायरमेंट फ्रेंडली पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप ऑटोमोबाइल को देखा जाए तो वहां पे अभी कंज्यूमर के पास 2-3 ऑप्शन, और जब ऐसा होता है तब एक तरफ केवल ईवी की तरफ पूरा ध्यान नहीं दिया जा सकता। गवर्नमेंट तो उसको बैलेंस करना होगा, क्योंकि अभी किसी को मालूम नहीं है पूरे दुनिया जहां में कि किसमें से कौन सी स्ट्रेटेजी जो है वो एकदम अल्टीमेट तरीके से सक्सेसफुल होगी। तो इसलिए मेरा मानना ये है कि ईवी में उन्होंने इसलिए इस बार पीएलआई या कुछ नया अनाउंस ना करते हुए, तो अगर आप इंटरिम बजट से लेके अब तक का समय देखें तो थोड़ा बहुत उन्होंने हाइब्रिड या थोड़ा बहुत उन्होंने सीएनजी के तरफ भी ध्यान रखा है कि हम लाइट फुटेड तरीके से इन सारे टेक्नोलॉजीज में पैर रखते हुए चलेंगे, ताकि जो अल्टीमेटली सक्सेसफुल हो हम वहां पे चले जाएं। ये मेरे हिसाब से गवर्नमेंट का एक सेंसिबल ऑप्शन, और हमें भी एज इन्वेस्टर्स वैसे ही इन्वेस्ट करना चाहिए। पूरा अगर ईवी की तरफ चले जाएंगे और जैसे मान लीजिए बाद में मालूम पड़ा कि ईवी टेक ऑफ नहीं किया, हाइब्रिड चल पड़ा या सीएनजी चल पड़ा, तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। तो मैं आपको कह रहा हूँ यही अंदाज मैंने अपने पोर्टफोलियो में भी किया है कि केवल ईवी की तरफ नहीं, अपने आप को बैलेंस करते हुए चलना। सर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और ये पूरे दर्शकों के कॉन्टेक्स्ट में भी मैं बोलता हूँ कि आज मार्केट कैप टू जीडीपी काफी महंगा है, बट उसके कंपेयर में अर्निंग भी अच्छी है। लेकिन और ऐसे बहुत लोग हैं जिनको मैं पर्सनली भी जानता हूँ, 18,500 19,000 के लेवल से भी बाजार से बाहर बैठे हुए हैं। आपका क्या मैसेज रहेगा इस मार्केट कैप टू जीडीपी का जो महंगा रेशियो है इसके कॉन्टेक्स्ट में, और कुछ बाजार से बाहर रहने के कॉन्टेक्स्ट में, इन दो चीजों को अगर हम लोग एक दूसरे के साथ जोड़ दे तो आपका क्या एक मैसेज रहेगा?
मेरा मैसेज रहेगा बाय ऑन टिप्स। देखिए, अगर आप 18-19 हजार से मार्केट से बाहर हैं, तो आप अगर एकदम पीक मार्केट्स में आएंगे तो आपको भी एक कंफर्ट फीलिंग नहीं रहेगा, और साथ में अगर उसके बाद करेक्शन हुआ तो एक बड़ी सी नेगेटिव फीलिंग आएगी मार्केट्स के प्रति। तो मेरा मानना यह है कि अगले 2 से 3 महीने में आपको एक अच्छा खासा, मतलब अच्छा खासा मैं नहीं कहूंगा, पर मोटा मोटी ऐसे मौके मिलेंगे जब मार्केट वोलेटाइल होगा, जब आपको करेक्शन देखने को मिलेगा। लेकिन उस करेक्शन में आपको एक्सपोजर लेना होगा। उस समय भी अगर आप 18-19 हजार या 15 हजार या 12 हजार का वेट करते हुए बैठे रहे कि हम तो उसी लेवल पे इन्वेस्ट करेंगे जहां से छोड़े थे, तो ये गड़बड़ होगा। और वो ये गड़बड़ इसलिए होगा क्योंकि देखिए साहब, कंपनीज की जो अर्निंग्स है वो एक गति से बढ़ रही है। वो गति 14 से 15% की है। तो जैसे जैसे टाइम पास होता जाएगा वैसे वैसे उनके अर्निंग्स भी बढ़ते जाएंगे। तो ये जो मार्केट लेवल है उसका लेवल भी धीमे धीमे बढ़ता जाएगा। तो इसलिए एक लेवल को पकड़ के ना बैठे, बाय ऑन डिप्स का स्ट्रेटेजी अपनाएं, और एक डिस्ट्रीब्यूटेड एसटीपी ओरिएंटेड तरीके से मार्केट्स में अगर हम इन्वेस्ट करें, एक डाइवर्सिफाइड फंड में, जो कि फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप या मिड कैप, जो भी 3 मैंने कैटेगरी डिफाइन किए हैं, तो अगर आप 3 से 5 साल का आउटलुक लेके चले, मेरे ख्याल से आप निराश नहीं होंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है पिछले 1 महीने में जो देखने के लिए मिली, और शायद मैंने पिछले 13 साल में कभी नहीं देखी थी, वो ये है कि पिछले 1 महीने में पूरे के पूरे, अगर मैं मतलब बजट के 2 दिन 3 दिन पहले वाली कहानी और आज हम लोग 29 को खड़े हैं, बाजार नीचे ओपन हो रहा है और दिन खत्म होते होते 3:30 बजे बकायदा वो ऊपर क्लोज हो रहा है। ये क्या दर्शाता है और एक क्या मैसेज इसमें से अपने को मिलता है? बिकॉज इस दौरान बाजार में बहुत बड़ी उठापटक भी देख ली है, बजट के दिन की भी उठापटक देख ली है। आपका एक ऑब्जर्वेशन मैं पक्का चाहूंगा इस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट के ऊपर, और उसके बाद देन आई विल बी ओपनिंग द एंटायर फोरम फॉर द Q&A। अच्छा, माफ कीजिएगा, ये जो पिछला सवाल था उसके दौरान आई थिंक या तो मेरा लाइन गड़बड़ा है या आपका मैं क्वेश्चन, थोड़ा रिपीट सा करता रिपीट कर हूँ, दीजिए। हाँ मैं रिपीट करता हूँ। पिछले 1 महीने में या सवा महीने में, मतलब 1 महीना 5 दिन में बाजार हमेशा नीचे ओपन हुआ है, तो लोग डरे और क्लोज होते होते बाजार ने उसका दिन का टॉप लगा दिया। तो कहीं ना कहीं नीचे से बहुत हेवी बाइंग आई है और बाजार नीचे जाने का नाम नहीं ले रहा, इंक्लूडिंग बजट बजट जिस दिन था उस दिन भी 400 पॉइंट निफ्टी टूटी, लेकिन क्लोज होते होते वो नॉर्मल इस पे आके क्लोज हो गई। ये क्या दर्शाता है और क्या मैसेज इसमें से हमको मिलता है? मतलब आपका क्या ऑब्जर्वेशन इस बारे में? देखिए, इसका ऑब्जर्वेशन काफी क्लियर है कि मार्केट में जो फ्लो है वो काफी स्ट्रांग है। इसका ऑब्जर्वेशन ये है कि जैसे आपने इंगित किया कि कुछ आपके मित्रों में से ऐसे हैं जो 18-19 हजार से बाहर बैठे हुए हैं, उन्होंने सोचा कि अब जो मिलता है उसी बेसिस पे एंटर किया जाए। और अगर आप देखें, इसलिए म्यूचुअल फंड में जो फ्लो है, आपको मैं ये बता दूं, जैसे मान लीजिए एक सिंपल सा केस लेते हैं कि जैसे ये एक एक रीडिंग एएमसी ने एक डिफेंस फंड लॉन्च किया था करीबन 1 साल पहले, एक हाँ साल से थोड़ा सा कम पहले, हाँ और काफी पैसे भी आए थे। और आप उनको इवेल्युएट भी करते होंगे ऑन डे बेसिस। हाँ। अगर आप मैंने लास्ट महीने के उनका फैक्ट शीट देखा तो देखा कि आधा पोर्टफोलियो अभी भी इन्वेस्ट ही नहीं हुआ है। तो कुल मिला के ये कि काफी हद तक म्यूचुअल फंड्स ने भी जो भी ये थीमेटिक एरियाज में जो उन्होंने पैसे रेस किए वो भी कैश में बैठे हुए हैं। ऑलराइट। तो जब ऐसा सीन है, तो जब भी थोड़ा बहुत मार्केट में करेक्शन देखने को मिलता है वो फिर आ जाते हैं। और पिछले 1 महीने से तो ऐसा हुआ है साहब कि जो उसके पहले एफआईआई नेगेटिव थे, उन्होंने भी ये पॉजिटिव मार्केट हो गए। में थोड़ी बहुत पार्टिसिपेट करने शुरू कर दी। तो पार्डन माय लैंग्वेज में पांचों उंगली घी में और सर कढ़ाई में वाला हाल हो गया। सो ऐसे माहौल में कुछ कुछ पॉकेट्स में देखिए वैल्यूएशंस में आती है। इसलिए मैं कह रहा हूं आज के डेट में आप जैसे एडवाइजर का रोल काफी अहम है। आप जैसे एडवाइजर्स, सीजन इन्वेस्टर्स, जब आप आकलन करते हैं एक ऑब्जेक्टिव तरीके से सारे फंड हाउसेस में कि कहाँ इन्वेस्ट करना है, कैसे इन्वेस्टेड करना है, आपके जो भी दर्शक आपके थ्रू सुन रहे हैं, देख रहे हैं, मैं यही कहूंगा कि आज के डेट में बिना एडवाइजर के खुद अगर एडवेंचर करने जाएं, तो जैसे मछुआरों को बोला जाता है कि आप सीज में जा रहे हैं जो कि रफ वेदर है, उस तरीके का ऐसा एक माहौल बन सकता है। तो एडवाइजर का हेल्प लेके ही जाना चाहिए और सिलेक्टिव होके इन्वेस्ट करना चाहिए, बिकॉज फ्लो काफी स्ट्रांग है। देखिए, जब फ्लो स्ट्रांग होता है तो उसके अगेंस्ट में खड़ा नहीं होता है, होना चाहिए।
लेकिन वो फ्लो के साथ कैसे बहना है वो आप जैसे एक्सपीरियंस एडवाइजर ही एडवाइस कर सकते हैं। नदी के बहाव के साथ जाना है, नदी के बहाव के अगेंस्ट में जाएंगे तो हम लोग कहीं पहुंच नहीं पाएंगे। करेक्ट। Yes, with this, it's amazing. I would now opening this entire session for the Q&A. आपके जो भी क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं प्लीज, बिकॉज त्रिदीप सर बार बार मिलते नहीं है और आज हमारा सौभाग्य है कि त्रिदीप सर हमारे साथ है। यस। अच्छा, किसी का कोई हेलो सर। क्वेश्चन? सरप्राइजिंग। हाँ सर, मैं किशोर काटोके। हाँ किशोर साहब बोलिए। नमस्कार। नमस्कार सर। सर अभी काफी सुनने में आ रहा है कि कुछ म्यूचुअल फंड वाले बोल रहे हैं कि म्यूचुअल फंड काफी ओवरबॉट हो चुके हैं, तो आप अपने म्यूचुअल फंड रीडिंग कीजिए। तो इसके बारे में क्या कहेंगे? ऐसे ही कुछ लोग 18-19 हजार में भी बोले थे। ऐसे कुछ लोग इलेक्शन के पहले भी बोले थे। देखिए इसमें क्या है, मेरा मानना ये है कि इसमें कोई भी जवाब सही जवाब नहीं हो सकता। इसमें ये क्या है कि जैसे आप मान लीजिए एक साल अगर बिजनेसमैन है, एक अगर साल में बिजनेस में ज्यादा प्रॉफिट बन जाता है तो बिजनेस बंद कर देते हैं क्या? नहीं करते, आप चालू रहते हैं। आपको मालूम है कि बिजनेस का जो प्रॉफिट है ये कभी ज्यादा होता है कभी कम होता है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा लॉन्ग टर्म तरीके से देखें तो ट्रेंड जो है वो ऊपर की तरफ है कि नहीं? सही कह रहा हूँ कि नहीं? तो उसी तरीके से मार्केट भी आप जैसे बिजनेसमैन से ही बनी हुई। तो ये हो सकता है कि पिछले एक साल में जितने रिटर्न बने वो अगले एक साल में उतने रिटर्न ना बने, लेकिन अगर आप 3, 5, 10 साल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें और केवल अपने देश का छोड़ के बाकी दूसरे देशों का एग्जाम्पल स्टडी करें कि कोरिया में क्या हुआ, जब ताइवान ने इतनी डेवलपमेंट करी थी तब वहां क्या हुआ, जब जापान का 1970s में डेवलपमेंट हुआ था तब वहां क्या हुआ था, तब पाइएगा कि ये जब डेवलपमेंट का समय आता है तो 10-20 साल में इक्विटीज में अच्छे खासे पैसे बनते हैं। इसमें बेसिकली अपना इक्विटी एक्सपोजर को बने रहना होता है। हो सकता है करेक्शन हो, लेकिन जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड है वो करेक्शन को ना ध्यान रखते हुए ऊपर की तरफ जब ऐसा हो तो चढ़ते सूरज को जैसे कहते हैं प्रणाम करना चाहिए, वैसे ही चढ़ते मार्केट को ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम प्रणाम करते हुए इन्वेस्टेड रहना चाहिए। और अगर आप मार्केट लेवल से डरते हो और लगता है कि मार्केट बहुत चल गया है तो जब बाय ऑन डिप्स है, वही मैं कह रहा हूँ, जब वो थोड़ा करेक्ट करता है तब आप पैसे लगाइए। तब आपको एक बिहेवियरली एक शांति भी रहती है कि मैंने थोड़ा मार्केट करेक्शन भी लगाया है और आपका मार्केट एक्सपोजर भी धीमे धीमे बढ़ता है। तो ये मैं कहूंगा आपके लिए, अगर आपका डाउट इस तरीके का। एक सर और सर विजय ये कुमार जी पूछना का था कि क्वेश्चन है। हाँ कुछ बोल रहे थे आप किशोर भाई। लमसम इन्वेस्टमेंट के लिए अभी ये समय सही है क्या? नहीं, मैं तो बोलूंगा कि एसटीपी। बाकी मेरे हिसाब से ये जो सवाल है ये आपको हमारे महानुभाव बेहतर बता पाएंगे, क्योंकि वो आपका आकलन करेंगे कि आपका रिस्क रिटर्न प्रोफाइल कैसा है, उसी से कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए। बट अगर आप मुझे एक ब्लैंकेट तरीके से पूछेंगे तो मैं कहूंगा आज का जो मार्केट का माहौल है इसको नियमित तरीके से, जिसको हम एसटीपी कहते हैं या एसआईपी कहते हैं, उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहिए और बाय एंड डिप्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहिए rather than lump sum। ओके, थैंक यू। एक से मिस्टर विजय कुमार जी है, इनका कहना है कि क्या एसटीसीजी और एलटीसीजी टैक्स इंक्रीज करना ये सही स्टेप था? अब ये क्वेश्चन एक्चुअली आपको नहीं है बट आपका सिर्फ ओपिनियन जानना चाहते हैं, बिकॉज जिन्होंने करना था उन्होंने कर डाला है सर। तो देखिए मेरा मानना ये है कि ये शॉर्ट टर्म नेगेटिव बट फॉर ए लॉन्ग टर्म पॉजिटिव। शॉर्ट टर्म नेगेटिव ये है कि आपको 2.5% ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे अगर आप जल्दी शेयर करते हैं, प्रॉफिट बुक करते हैं। और लॉन्ग टर्म पॉजिटिव ये है कि अब आप कोई भी एसेट क्लास ले लीजिए, कहीं पर भी आर्बिट्राज नहीं है। टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से आप जो पहले गवर्नमेंट क्या कर रही है ये समझना जरूरी है। गवर्नमेंट क्या कर रही है, जो अलग अलग एसेट क्लास में काफी लोग एडवाइस करते हैं, वो जो आर्बिट्राज है कि यहाँ पे ये टैक्स कम है इसलिए यहाँ आ जाइए, यहाँ पे ज्यादा है वहां, वो सारा धीरे धीरे खत्म होगा। हाँ, और जब ऐसा खत्म हो जाएगा तब आप पाइएगा कि इक्विटीज एज एन एसेट क्लास, उसकी जो अट्रैक्टिवनेस है वो अपने में इतनी बेहतर है, उसको कोई टैक्स बहुत ज्यादा मतलब क्लाउड में घेर के नहीं रख सकती है। तो मेरे ख्याल से ये शॉर्ट टर्म पॉजिटिव फॉर ए बिग लॉन्ग टर्म पॉजिटिव है, शॉर्ट टर्म नेगेटिव फॉर ए बिग लॉन्ग टर्म पॉजिटिव है। इसको मैं इस तरीके से देखता हूँ। दूसरा ये
कि ये देखिए हर बजट में मुझसे ये सवाल पूछा जाता था कि भैया कब बढ़ेगा, बढ़ गया, खत्म हुई कहानी, अब आगे बढ़ते हैं। तो मेरे ख्याल से एक बार के लिए गवर्नमेंट ने ओवरहैंग खत्म कर डाला, वो भी बेहतर है। अभी आगे गूढ़ सवालों की तरफ ज्यादा हमारा रुझान होगा। तो ऐसे ये मेरा रिस्पॉन्स है। ऑलराइट सर सर, मेरा क्वेश्चन है। हाँ हाँ मनोज भाई आइए बोलिए। सुदीप सर, आप नमस्कार। काफी काफी बताएं, लेकिन अभी मेरे को ये जानना है कि अभी हम कोई क्लाइंट को एडवाइस करते हैं तो हम कौन सा सेक्टर स्पेसिफिक हम बोले, एनर्जी बोले या फिर मैन्युफैक्चरिंग बोले या फिर बिजनेस, काफी सारे सेक्टर्स है। तो अभी हम देखें ये बजट किस सेक्टर पे मतलब नेक्स्ट 5 इयर्स फोकस ज्यादा रखेगा? यहीं पे मैं आपको थोड़ा सा क्वेश्चन करूं। मेरे हिसाब से ये समय सेक्टोरल फंड में एलोकेशन का नहीं है। ये यहाँ पे डाइवर्सिफाइड तरीके से, डाइवर्सिफाइड फंड का समय है। डाइवर्सिफाइड दो तरीके से, सेक्टर तरीके से, मार्केट कैप तरीके से। क्योंकि अगर आप मान लीजिए, मैं कोई सेक्टर का नाम नहीं लेना चाहूंगा, बट मान लीजिए कोई एक सेक्टर का, जैसे इंडेक्स फंड आप लेकिन रिकमेंड करते हैं, सर सॉरी जिसमें डिस्टर्ब 5 करना, ही। लेकिन सर एक मिनट, जिसमें सेक्टर स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन क्या हो रहा है ना कि सेक्टर स्पेसिफिकली जो होते हैं, जो अगर लार्ज कैप में है तो लार्ज कैप में भी तो वही सेक्टर है। आई मीन सपोज कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, सपोज कोई इंफ्रा कंपनी है, अभी मैं को लेता हूँ कि कोई भी एक कंपनी लेता हूँ जो अल्ट्राटेक है सपोज, तो वो लार्ज कैप में आती है, लार्ज कैप में सेक्टर। लेकिन जब कंपनी उसको पैसे डाल रही है सेक्टर सेक्टर स्पेसिफिक होके भी, तभी भी वो लार्ज कैप में डाल रही है ना। तो इसका बहुत सही सवाल है। इसका जवाब मैं यही कहूंगा कि आप मान लीजिए मेरे फ्लेक्सी कैप फंड में आते, या किसी के भी मल्टी कैप फंड में आते, या मिड कैप फंड में आते, ठीक है। तो मान लीजिए आपने कोई एक लार्ज कैप सीमेंट शेयर स्टॉक में खरीदा, मैंने खरीदा आपके लिए, ठीक है। और मान लीजिए वो शेयर अगले 3 महीने में 40% चढ़ गए, ठीक है। तो मेरे पास अभी ऑप्शन है कि मैं इन्वेस्टमेंट वहीं रखूं, या फिर मिड या स्मॉल कैप, या जहां पे भी मुझे बेटर अपॉर्चुनिटी है वहां पे चले जाऊं। क्योंकि क्या होता है कि कोई भी सेक्टर के जो है ना शेयर प्राइसेस को रिलेटेड होते हैं। कभी कभार देखिएगा कि डिफेंस के शेयर एकदम तो बहुत तेजी से ऊपर चले गए, और फिर वो जब गिरते हैं तब साथ में गिरते हैं। तब क्या हुआ, जब वो ऊपर चले गए तब हमने वहां पे थोड़ा प्रॉफिट कमाया, थोड़ा सा प्रॉफिट बुक किया। और मान लीजिए वहां से हम आईटी में हम लोग चले गए, जो कि चला ही नहीं। उसके बाद रिजल्ट सीजन आया, आईटी के शेयर चले गए। तो आपको एज इन्वेस्टर एक डाइवर्सिफाइड फंड में इन्वेस्ट करने से दोनों का फायदा हुआ, डिफेंस का भी फायदा हुआ, आईटी का भी फायदा हुआ। लेकिन अगर आप सेक्टोरल फंड में जाइएगा, जो केवल डिफेंस में इन्वेस्ट करता हो या केवल आईटी में इन्वेस्ट करता हो, उस समय दुविधा आपके फंड मैनेजर के लिए यही है कि उनका मैंडेट ही है आईटी में इन्वेस्ट करने के लिए। तो चाहे शेयर ऊपर हो या नीचे हो, उनको रहना वही है। आपको फिर सब टाइम टू टाइम कॉल लेना होगा कि यहाँ से पैसे निकालें या फिर छोड़ दें। तो उससे बेहतर है ये काम हमारे जो डेली करते हैं हम जैसे पोर्टफोलियो मैनेजर्स पे छोड़ दें, और जहाँ बेहतर रिस्क रिवॉर्ड अपॉर्चुनिटी हो, उस हिसाब से हम थोड़ा अपना जगह और वो स्थान तो शिफ्ट करते हैं। फंड मैनेजर छोड़ दे, लेकिन क्लाइंट हमारे ऊपर छोड़ देता है कि हमें ज्यादा रिटर्न चाहिए। अब उसको ज्यादा मालूम बस बढ़ रहा ज्यादा है, लेकिन रिटर्न वो चाहिए। नहीं दे रहे हो तुम, सही एडवाइस नहीं कर, दूसरा एडवाइजर मेरे को ये बोल रहा है वो बोल रहा है। आई मीन आप जानते हो ना इन्वेस्टर को क्या चाहिए, कितना लगाया कितना चाहिए, बस उतना ही है उसका कहानी। नहीं, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि जो मैंने आपको एग्जांपल दिया, आपने ऑलरेडी डिफेंस की भी तेजी अपने पोर्टफोलियो क्लाइंट को दिया, और उसके बाद जो आईटी की तेजी है उसमें भी दिया, तो क्लाइंट का रिटर्न ज्यादा बना, एज अपोज टू एक ही सेक्टर फंड में इन्वेस्ट करना, जहाँ की उसने तेजी तो बनाई, शायद थोड़ा ज्यादा ही बना, लेकिन उसके बाद ये जो करेक्शन आया वो काफी जोर से हुआ। और मेरा मानना ये है कि आपके कस्टमर्स या कोई भी इन्वेस्टर को आप देखें ना, जो लॉस अवर्जन हम कहते हैं, वो लॉस अवर्जन हमेशा ज्यादा होता है। कि अगर आप मान लीजिए 70% रिटर्न भी आप बनाए हो, लेकिन अगर उसके बाद 20% करेक्शन हो गया ना, तो आप उससे ज्यादा डरते हो एज अपोज टू ग्रेजुअल रिटर्न। तो जो मेरा एडवाइस है वो तो ग्रेजुअल रिटर्न का रहेगा, बाकी आपकी कृपा दृष्टि और आपके क्लाइंट की इच्छा। नाइस। थैंक यू मनोज भाई फॉर द क्वेश्चन। थैंक यू सर, थैंक यू। नमस्कार।
Is there any other questions? सर एक क्लाइंट ने कल मुझे पूछा था कि जी आवाज है कि जो हमें नमस्कार। डिविडेंड मिलता है म्यूचुअल फंड के इसके डिविडेंड मिलता है तो वो शेयरिंग में होता है या कस्टमर को ही मिलता है इन्वेस्टमेंट के ऊपर? शेयरिंग में मतलब एज ए फंड मैनेजर मुझे भी कुछ मिलता है कि नहीं उसमें? नहीं 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 अभी हम बोलते हैं हम क्या बोलते हैं अपना अ, जैसे हम इन्वेस्टर को ये बोलते हैं कि चार्जेस लगते हैं इसके म्यूचुअल फंड के तो ये आप ही ले लीजिए दीपक। ठीक है मैं दीप सर को पूछ लेता एक बार। हाँ, मुझे अपन बात कर लेंगे मुकुंद भाई। यस 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 हाँ, हम लोग बात कर लेंगे, डन है। एक्चुअली डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन इसकी टैक्स की बात कर रहे होंगे, मैं देख लूंगा, कोई तकलीफ नहीं। करेक्ट। एनी अदर क्वेश्चंस? बिकॉज बाद में त्रिदीप सर मिलते नहीं है, और आज हमारा भाग्य है कि इनका खुद का कॉल जो एडलविस का वो कल है, बट आज हमारे साथ है सर। Sir, I have a question. या निकल भाई। बोलिए। सर जैसे जो टैक्सेस से रिलेटेड क्वेश्चन था कि टैक्सेस बढ़ाए गए हैं और ये इसका रीजन ये हो सकता है कि जिस स्पीड से बैंक्स में लोन्स बढ़ रहे हैं उस स्पीड से डिपॉजिट्स नहीं बढ़ रहे, तो ये एक रीजन हो सकता है कि गवर्नमेंट चाह रही है थोड़ा सा वापस लोग बैंक्स में डिपॉजिट करें पैसा और म्यूचुअल फंड या स्टॉक्स में उतना ना करें जितना अभी हो रहा है, तो ये एक रीजन हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, नहीं है। आई थिंक जैसे हमारे दास श्री दास जो हमारे आरबीआई गवर्नर है, माननीय गवर्नर जी, उन्होंने कहा कि क्या बोलते हैं अभी जो देखने को मिल रहा है वो स्पेकुलेटिव एलिमेंट थोड़ा मार्केट्स में ज्यादा है। हालांकि उनका ध्यान एफएनओ की तरफ ज्यादा था जब वो कमेंट कर रहे थे। बट ये बात सही है कि आजकल जो डिपॉजिट की दरें हैं वो उसके बनिस्बत जो इक्विटी मार्केट्स या एसेट क्लास में रिटर्न्स लोगों के बने हैं वो बेहतर बने, इसलिए लोगों का रुझान मार्केट्स की तरफ ज्यादा है और डिपॉजिट की तरफ कम। इसलिए बैंकों के लिए लेंड करना एक मुश्किल हो रही है और इसलिए उनको डिपॉजिट की दरें बढ़ानी पड़ेगी। पर मेरे हिसाब से मेरा मानना ये है, देखिए ये जो है ना, ये नदी का प्रभाव है, ऐसा सोच लीजिए। ये नदी का प्रभाव वो अपने हिसाब से चलेगा, प्रवाह वो अपने हिसाब से चलेगा। उसमें हम थोड़ा बहुत रेगुलेट कर सकते हैं कि पानी इधर से ना बहे या उधर से बहे, बट अल्टीमेटली जो पानी का बहाव है वो अपने हिसाब से बहेगा। इसको थोड़ा बहुत मॉडरेट करते हुए चलने का जो रेगुलेटर का यहाँ पे क्या बोलना चाहिए, उनका जो करने की इच्छा है वो ये है कि कहीं फ्रॉथ, बहुत ज्यादा फ्रॉथ ना बिल्ड हो जाए, कहीं हमको लोगों का बहुत खासा नुकसान ना हो। और उस पॉइंट ऑफ व्यू से जो वो कह रहे हैं और जो वो कर रहे हैं वो सराखों पे, और उन्होंने ठीक किया। लेकिन बहुत कम देखा गया है कि ऐसा रेगुलेटर के कहने से चीजें चेंज हो जाएं। अल्टीमेटली तो एनिमल स्पिरिट्स तो कहते हैं वो अपने हिसाब से काम करते हैं। तो इसलिए आज के माहौल में थोड़ा सा सिलेक्टिव रहने की जरूरत है। दीप साहब से बात करके इन्वेस्ट करने की जरूरत है और थोड़ा सा डाइवर्सिफाइड टाइप ऑफ फंड्स में इन्वेस्ट करने की जरूरत है। अगर इतना कॉशन बरते हैं तो मेरे ख्याल से मार्केट इन्वेस्टमेंट के लिए अभी भी ठीक है। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू निखिल भाई। थैंक यू। Any other question? So it's great. Yeah, Vishal sir. One of my friend will take a loan and invest in mutual fund and do the SWP and do the SWP repay the loan. What is your opinion on this? Yes sir. Sir, the question is for you. इनके एक दोस्त ने, विशाल भैया के एक दोस्त ने जो है वो लोन लिया, लोन लेके इन्वेस्टमेंट किया, उसका SWP से उसका EMI पे किया। Your take on this? ये तो आपकी मुस्कान ही बता रही है कि इसका जवाब तो शायद आप बेहतर दे पाए। मैं तो देखिए पोर्टफोलियो मैनेजर हूँ, जो आप पैसे देते हैं वो ताकि सही जगह, वो मेरा काम है। लोन लेके या SWP या SIP क्या करना चाहिए, इसका ध्यान तो आप ही करेंगे। विशाल भाई बात कर लेंगे अपन। फोरम में आंसर नहीं देता हूँ, बात कर लेंगे इन पर्सन।
So with this, thank you very much. It was Sir, indeed a मेरा great time. Yes, there is another question. Sorry. सर मेरा एक क्वेरी है। हाँ संदीप भाई, तो जी अभी जो एसआईपी का बुक है अराउंड 22,000 करोड़, बराबर। ओके, और हमारा एयूएम अराउंड अभी पूरा एएमसी का एयूएम चला गया होगा टोटल 60 लाख करोड़ के अराउंड तो आराम से चला गया होगा, जिसमें परफेक्ट, से 50% इक्विटी होगा, बाकी डेट में चला गया होगा परफेक्ट। सर। और मार्केट अभी 3.4% बढ़ा है, यानी 60 तो चला गया होगा। जो एमफी के नंबर है वो 58 है, तो 60 गया होगा परफेक्ट। सर। अभी एक उसका हिसाब से सभी एएमसी का अराउंड 5% तो कैश लिक्विडिटी रहता ही है, तो वो मेंटेन करेंगे सर। यानी 1.25 लाख करोड़ अगर ये मार्केट में कैश पड़ा रहेगा सर, तो मार्केट गिरेगा कैसे? ये आप अपना अपना आप थोड़ा कैमरा ऑन कीजिए। ये आप अपना अपना आप दुखड़ा रो रहे हैं या फिर आपको इस बात की खुशी है? देखिए, बात आपकी सही है कि मैंने इसलिए कहा कि कुछ लोगों ने जो जैसे सेक्टर स्पेसिफिक फंड्स जो रेस किए थे, उनके वो भी अभी फुल्ली डिप्लॉय नहीं हुए हैं। तो कुल मिला के इसलिए कैश सिटिंग इन द साइडलाइंस काफी ज्यादा है, इसलिए करेक्शन अगर हो भी रही है तो जिसको हम कहते हैं करेक्शन, वो हो रही है। तो ये सब में क्या है ना साहब, दो तरीके से हम चीजों को देखते हैं। एक होता है फ्लो और दूसरा होता है अर्निंग्स, ठीक है ना। तो फ्लो अपने हिसाब से चलता है, अर्निंग्स अपने हिसाब से चलता है। कभी जब फ्लो बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो जाता है, अर्निंग्स उतना तेजी से नहीं चलता है, तो हमको करेक्शन देखने को मिलता है। वो करेक्शन के रीजन अपने अलग अलग होते हैं, लेकिन मार्केट करेक्ट नहीं भी करे, अगर मार्केट यही बना रहे एक साल, तो पूरे मार्केट की अर्निंग्स 15% ज्यादा बढ़ जाएगी। जो पिछले 2 सालों में एक बार हुआ 21-22 में, अगर आप ध्यान करें तो मार्केट एक साल वहीं पड़ा रहा। तो उससे क्या हुआ, एक साल में जो उसको हम टाइम करेक्शन कहते हैं, 2 साल में मोटा मोटी, क्योंकि मार्केट एक साल आगे देखता है, 30% बढ़ गई। तो नेट नेट मार्केट 30% सस्ता हो गया। और अगर आप आज मुझसे पूछें कि आज की जो प्राइस अर्निंग्स मल्टीपल है पूरे मार्केट की, निफ्टी 50 अगर आप ले लें, तो क्या वो बहुत एक्सपेंसिव है? आंसर है नहीं। वो अपने हिस्टोरिकल एवरेज से 10% ज्यादा ऊपर। तो थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, लेकिन बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। तो ऐसे माहौल में मंदी में रहना मेरे ख्याल से घाटेकारी हो सकता है। बाइंग ऑन डिप्स एक अच्छा स्ट्रेटेजी है, उसी हिसाब से चलना चाहिए। बाय एंड लार्ज मैं आपसे आपके एनालिसिस से इत्तेफाक रखता हूँ कि जब कैश इतना ज्यादा हो तो बहुत ज्यादा डीप करेक्शन एक्सपेक्ट करना मुश्किल है। बाकी तो समय होता है। संजय भाई, एक और एडिशन इसका करता हूँ आपके एनालिसिस में। इट इज बेसिकली Go नॉट 1.25 करोड़, इट इज मोर और लेस 4.25 लाख करोड़। एनीवेज, से अलग कहानी हो, आराम से बैठ के बात करेंगे। सो एनी अदर क्वेश्चंस? हेलो। हाँ लालजी भाई बोलिए। हाँ नमस्ते सर जी। नमस्ते लालजी भाई। नमस्कार। हाँ मैं पूछना चाह रहा था सर आपसे कि जैसे बताते हैं आप लोग कि अदर कंट्री में 95% लोग क्या बोलते हैं मार्केट में आते हैं, और इंडिया में सिर्फ 10% भी नहीं है। तो अब जब इतने लोग आ रहे हैं तो कहाँ प्रॉब्लम आ रही है सर? हम कब बोल रहे हैं प्रॉब्लम आ रही है? यहाँ पे तो जैसे हमने पिछले सवाल का जवाब देते थे, हम लोग यही, हम और दीप भाई यही सोच रहे हैं कि प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी हो रहा है, कि इतने तेजी से आ रहा है कि रुक नहीं रहा। प्रॉब्लम कहाँ है? मेरे ख्याल में आई थिंक हुआ ये है कि हमने एक सस्टेन बुल मार्केट काफी कम समय में देखा है। हमने देखा है कि हम अपने देश में ना सेल्फ गोल काफी मारते रहे पिछले 20-30 साल में। ऑनेस्ट बात कर रहा हूँ। हम खुद ही करते हैं, फिर कुछ एक गड़बड़ निकल आता है, फिर हम पीछे चले जाते हैं, फिर आगे आते हैं। ये आगे पीछे करके काफी डेकेड्स निकल गए। इसमें 2014 से एक जो पॉलिसी कंटिन्यूटी, एक जो गवर्नमेंट का एक सिंगल माइंडेड फोकस है, ये जो हमको देखने को मिल रहा है, उसके पीछे पीछे और उससे जुड़ी हुई ये मार्केट की तेजी है। ये दोनों को साथ में रख के देखना चाहिए कि हम एक सस्टेन तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, डायरेक्शन से आगे बढ़ रहे हैं, और एक मेथोडिकली आगे बढ़ रहे हैं। जब ऐसा होता हो तब, और ये अलग अलग देशों में अलग अलग समय हुआ है। ये कोरिया ताइवान में 80s 90s में हुआ है, जापान में 70s 80s में हुआ है, और यूएस में उससे पहले हुआ है। तो जब ऐसा होता हो तब उसको बेसिकली उसमें पार्टिसिपेट करने की बात आती है, उसको स्केप्टिसिज्म से देखने की नहीं बात होती। तो जो अब तक हमने देखा है, जिस हिसाब से अब तक की कहानी बन पड़ी है,
उस समय तो कहानी कंस्ट्रक्टिव है, उस समय तो डायरेक्शन उसके हिसाब से तो पॉजिटिव है। अब आगे हम इसमें करना ये होता है कि निरंतर अपना, जैसे क्रिकेट में कहते हैं कि अपना जो आंख है वो बॉल की तरफ बनाए रखना चाहिए, वैसे यहाँ पे हमारी जो आंख है वो अर्निंग्स की तरफ बनी हुई है, और उसके आगे जैसे जैसे कैलिब्रेटेड तेजी होती है, वहां वहां अगर हम अपने पोर्टफोलियोज को ओरिएंट करें कि हम वहीं रहे जहाँ पे अर्निंग्स ग्रोथ भी आती रहे, तो ये जो तेजी देखने को मिलती है शेयर प्राइसेस में, वो सस्टेनेबल तेजी बन जाती है। तो यही हमारा फॉर्मूला है, यही हम फॉलो करते हैं, बाकी तो थोड़ा आगे पीछे होता है। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू हेलो राजीव सर। भाई। हेलो हाँ हेलो होना बोलिए। सर, बोला। हाँ सर, अब ग्रोथ में सैचुरेशन तो नहीं आ जाएगी? देखिए दीप साहब, हमने जितने आज क्वेश्चन फील्ड किए, इसमें एक तो आप मानिएगा कि 80% लोगों को अभी भी कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, तो ये मतलब जो कहते हैं ना बुल मार्केट, ये बुल मार्केट इसी से हमको पता कर सकते हैं। जब बुल मार्केट पीक में होता है ना, तब एकदम चढ़ के बोलते हैं लोग, तब रिस्क एपिटाइट ऊपर होती है। यहाँ पे अभी भी स्केप्टिसिज्म है, और ये आपका सवाल एक हेल्थी स्केप्टिसिज्म है कि ग्रोथ में सैचुरेशन नहीं हो जाएगी। मेरे हिसाब से ग्रोथ में उतार चढ़ाव हो सकता है। मतलब कि अगर पिछले साल का, जैसे आप हमारे ऑटोज का ग्रोथ लें, पिछले साल ऑटोज की ग्रोथ आई करीबन 25 से 30%। इस बार शायद ऑटो में ग्रोथ उतना ना आए, इस बार हो सकता है हम मिड डबल डिजिट में ग्रो करें, लेकिन ये जो ग्रोथ मिड डबल डिजिट की होगी, ये अभी भी काफी स्ट्रांग है। तो कुल मिला के सिक्लिकल स्लोडाउन भले ही आ जाए, लेकिन सैचुरेशन आने के चांसेस कम। क्योंकि हेलो, डिफेंस सेक्टर तो बहुत ही ऊंचा हो गया है। हाँ, जी बाद में ये पावर सेक्शन भी बहुत ऊंचा हो गया है। तो जी अभी तो बचा खाली इंजीनियरिंग कंपनी बस, क्योंकि केमिकल कंपनी डाउन है, आईटी सेक्टर भी थोड़ा डाउन है, अभी बचा हाँ खाली इंजीनियरिंग कंपनी बस। हाँ वहां ही ग्रोथ है। तो फंड मैनेजर खाली क्या है, इंजीनियरिंग में ही घुसेंगे, या ऑल ओवर सब जगह उनको इन्वेस्ट करना पड़ता है? जबरदस्ती है वो, सरकार बोलती है कि अब हर एक सेक्टर में तुमको पैसा डालना ही मांगता है, तो डालना ही पड़ता होगा। तो आपकी मुसीबत क्या और हमारी मुसीबत क्या, वो भी आपसे जानना चाहता देखिए, हूँ मैं। तो देखिए जैसे अब हम बोल रहे थे, तो हमारे सहपाठी जो इस कॉल में है, उन्होंने लिखा कि बैंकिंग भी अभी बाकी है, तो उस हिसाब से आईटी अभी बाकी है, एफएमसीजी अभी बाकी है, तो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स अभी बाकी है, पूरे कंजम्पशन अभी बाकी है। अभी देखिए कुल मिलाकर के अगर आप निफ्टी 50 ले लें, तो अभी तेजी आई है, क्या बोलते हैं, कैपिटल गुड सेक्टर में, जो कि मार्केट का 10% मान लीजिए वो होगा। और इसको छोड़कर के ऑटोज में जो एक और 6% मान लीजिए, मोटा मोटी अगर आप सारा जोड़ जाड़ करके देखें, तो 40% मार्केट में तेजी आई है, 60% मार्केट अभी भी बाकी है। सो कुल मिला के एज फंड मैनेजर हम लोग ये ढूंढते हैं कि जो बाकी है वहां पे कहाँ है जो थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट हो सकता है। मैंने ये कॉल में बताया कि थोड़ा बहुत आईटी में पॉजिटिविटी आ रही है, थोड़ी बहुत एफएमसीजी में पॉजिटिविटी आ रही है, तो वैसे ही हम थोड़ा नगेट्स ऐसे जगह पे ढूंढते हैं जहाँ पे अभी भी ग्रोथ प्राइस इन नहीं है, और वहां पे अपने पोजीशन बना लेते हैं। और यही काम करने की फीस लेते हैं कि पता करें कि कहाँ अभी भी वैल्यूएशन पूरे तरीके से वैल्यूएशन फुल नहीं है, वहां अभी भी अर्निंग्स ग्रोथ है और वैल्यूएशन अभी भी ठीक ठाक है। तो यही करते रहेंगे, फिर जब तक ये मिलता रहेगा तब तक मार्केट चलता रहेगा। थोड़ा सा ऑनगोइंग सा आंसर है, बट इसका आंसर वैसे ही होगा। कुछ और क्वेश्चंस है सर? हाँ, आप क्या बोल रहे थे? मिलन नरवड़े सर, आप कुछ बोल रहे थे, यू आर आस्किंग सम क्वेश्चन। मिलन भाई, हाँ सर, मुझे एक पूछना था एएमसी रिलेटेड, पूछ बोला सकता हूँ क्या? बोलिए। बोला। हाँ, मुझे ये पूछना था, अभी जो एएमसी जो रहती है उनके पास जो फंड आता है, अपने मल्टी कैप पकड़े समझो, अभी उसके अंदर अलग अलग कंपनी में वो जो इन्वेस्ट करते हैं,
तो जब वो फंड से जब बाय करते अलग अलग कंपनी में जो मतलब इन्वेस्ट करते, तो वो जब भी मतलब प्रॉफिट बुक कर लेते, तो उसका एंट्री अपने को पता चल सकता है कि अभी समझो 1000 करोड़ है, उसमें से उन्होंने 500 करोड़ अलग सेक्टर में डाले, 500 करोड़ अलग सेक्टर में डाले, तो उनकी एंट्री अपन पता कर सकते हैं कि कब उन्होंने कितनी बार बेचा, कितनी बार प्रॉफिट बुक किया है, वो पता चलेगा क्या? तो कुल मिला के हमारा जो मंथली तौर पे एक फैक्ट शीट या डेटा शीट आता है, जिसमें हम हमारा पोर्टफोलियो डिस्क्लोज, उसमें महीने के हर महीने में किस शेयर्स में हमने एंट्री ली, किस शेयर्स में हमने एंट्री किस में एग्जिट ली, किसके वेटेजेस बढ़े, किसके वेटेजेस घटे, वो अपने को मंथली बेसिस पे जानने को मिलता है और वो पब्लिकली डिस्क्लोज होता है। दीप भाई, आपको जोड़ना चाहेंगे? और अच्छा, और एक पूछना था, मतलब इन्वेस्टमेंट कौन से एएमसी में करना चाहिए, उनका एईएम देख के करना चाहिए या सेक्टर देख के करना चाहिए? दीप भाई, आप कहाँ हैं? मिलन भाई, इस पे अपन मेरी बात कर मदद लेंगे। कीजिए। इस पे बात कर लेंगे, मैं आपको सारे फंडामेंटल्स बता दूंगा कि कैसे उसको चूज करना है। उसके लिए पूरा प्रोसेस सेट किया हुआ है हम लोगों ने, तो वो मैं आपको बता दूंगा। बट हाँ, एक चीज, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा मिलन भाई आपने, और इसका मैं हमेशा सबको आंसर देता हूँ। आज इस फोरम का यूज करके मैं आंसर वापस देना चाहता हूँ कि दुनिया की सबसे ट्रांसपेरेंट अगर कोई चीज आपको पता होगी, दुनिया की सबसे ट्रांसपेरेंट चीज अगर आपको कोई पता होगी, उससे भी ट्रांसपेरेंट अगर कोई चीज अगर दुनिया में है, वो है म्यूचुअल फंड। इससे ट्रांसपेरेंट प्रोडक्ट आपको पूरी दुनिया में इन्वेस्टिंग का नहीं मिलेगा। ये मैं पूरी प्रामाणिकता के साथ इस पर्टिकुलर फोरम में बोलना चाहूंगा, इन फ्रंट ऑफ द सीईओ सीआईओ ऑफ द एडब्ल्यूएस म्यूचुअल फंड, बिकॉज हर एक छोटी से छोटी चीज यहाँ पे ऑडिट होती है, हर एक छोटी से छोटी चीज यहाँ पे, बारीक से बारीक चीज यहाँ पे पूरी दुनिया को पता होती है। तो इससे ट्रांसपेरेंट प्रोडक्ट पूरी दुनिया में नहीं है, ऐसा मेरा बहुत प्रामाणिक मानना है। ये आपके क्वेश्चन का आंसर भी है मिनल भाई। हाँ, और एक पूछना था, मतलब मैंने पूछा भी इसलिए ये, क्योंकि मतलब किसी को इन्वेस्ट करने को बोलने जाए ना, तो वो ऐसा वीडियो भेजते हैं जिसमें मतलब म्यूचुअल फंड के खिलाफ बोला गया है। मतलब अभी जो क्वेश्चन पूछा है ना मैंने, ये हाँ उसे जी, उसी के हिसाब से पूछा गया है। क्योंकि बरोबर। अभी एक रील वायरल हो रहा था बहुत, क्वांट जो है ना, हाँ एम से क्वांट का, हाँ तो उनके भी रिटर्न्स बहुत हाई, इसलिए उसके ऊपर किसी ने तभी मेम बनाया था शायद, तो मतलब लोग वैसा मतलब शेयर कर देते हैं, मतलब कि म्यूचुअल फंड में मतलब ट्रांसपेरेंसी नहीं है, खुद प्रॉफिट ज्यादा कर लेते हैं, अपने को 10% दे देते हैं, 20% दे देते हैं, ऐसा मतलब। तो मतलब वो जो अपने क्लाइंट है ना, वो ऐसे रील भेजते हैं, अपन उनको मोटिवेट करने को जाते हैं, लेकिन वो अपने को ऐसा डिमोटिवेट करके वो वैसे मतलब ऐसे रील ढूंढ के लाते हैं जैसे उसमें बोला मिनल जाता है मिनल भाई, मिलन कि भाई, हाँ। मिलन भाई, आई टेल यू, मैं पिछले 13 साल से काम कर रहा हूँ, सर ने 30 साल डाले हैं। आपको वो एक रील मुझे भेज देना, मैं 30 रील आपको भेज दूंगा, हर हर रील के अगेंस्ट में। डोंट वरी अबाउट इट, चिंता मत करो आप। ये बिजनेस बहुत प्रॉपर है, बहुत मजबूत है, फंडामेंटली एकदम स्ट्रांग है। डोंट वरी अबाउट इट। नहीं, ऐसे अपने पास भी मतलब के ऐसा रखने को कुछ कुछ होने नहीं वाला। दिखाने को रहा कि इधर जाके अपन चेक कर सकते हैं, पूरा ट्रांसपेरेंसी है, अगर वो अपन कस्टमर को दिखा पाए तो वो इंपीरियल अच्छा के, होगा। मिलन भाई, इंपीरियल के वेबसाइट पे आपको हर चीज मिल जाएगी। मैं आपसे बात कर लूंगा, आपके रिलेशनशिप मैनेजर को मैं आपसे कनेक्ट करा दूंगा। डोंट वरी। जी सर, जी। श्योर, थैंक यू वेरी मच फॉर आस्किंग द क्वेश्चन। नमस्कार सर. नमस्कार। हाँ, श्रीकांत सर बोला। सर मला एक विचारायचं होतं, जो प्रेजेंट लेवल है, अगर इसमें मार्केट में अपना पार्टिसिपेंट बढ़ेंगे तो इंडेक्स पे क्या फर्क पड़ेगा? मतलब जो 23,000 24,000 जो ऑल टाइम हाई है वो कम होगा या कैसे होगा? मतलब फिर उतने ये भी होना चाहिए ना सब, उतना लेने वाले भी रहने चाहिए। अपना पार्टिसिपेंट अगर बढ़ गए, नए नए लोग अगर मार्केट में आ गए तो क्या होगा सर? तो एक तरफ जब नए नए इन्वेस्टर्स आते हैं, दूसरी तरफ नए नए कंपनीज लिस्ट भी होते हैं, तीसरे तरफ जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है, जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट हुआ कुछ हद तक, वो अपना स्टेक बेचते भी हैं। कभी कभी जैसे कुछ प्रोमोटर्स हुए, जो फाउंडर्स हुए, उन्होंने जो मान लीजिए कोई कंपनी का 80% कोई एक प्रोमोटर ओन करता है, तो उसको वो थोड़ा घटा के 75% कर लेते हैं। तो कुल मिला के एक इन्वेस्टर का पैसा दूसरे इन्वेस्टर की तरफ जाता है। सब अपना अपना आकलन करके आते हैं कि इसमें ये जो उनको अच्छा लगे, वो उनमें उनको पार्टिसिपेट करना है। लेकिन जहां एक तरफ इन्वेस्टर्स के अकाउंट बढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ कंपनीज के अकाउंट भी बढ़ रहे हैं। जैसे पिछले एक साल में अगर इंडिया इक्विटी मार्केट की बात करें, तो कुल मिला के 90 आईपीओ आए। ये 90 आईपीओ काफी ज्यादा होते, 90 नए कंपनियां आई हैं,
उसमें कुछ मार्केट कैप लार्ज कैप की है, कुछ मिड कैप की है, कुछ स्मॉल कैप की है। तो जब ऐसा अलग अलग भांति के आपको मार्केट कैप के कंपनीज ऐड होते हैं, तो आपका जो पूल है जो इन्वेस्ट करने के लिए है वो भी बढ़ रहा होता है। इसलिए केवल इन्वेस्टर्स बढ़ रहे हैं वो देख करके हम पूरे सिचुएशन का एक आकलन नहीं कर सकते। उसके काफी सारे पहलू हैं जो कि साथ में जोड़ना होगा। वो जो मैंने 2-3 पहलू आपको बताए कि नए लिस्टिंग्स हुए, अलग अलग पार्टिसिपेंट्स का अपना सेलिंग बिहेवियर, बाइंग बिहेवियर है, ये सब का जोड़ करके एक मिश्रण होता है इक्विटी मार्केट का, इंडेक्स का लेवल। इसलिए उसको इन सबको जोड़ के देखना पड़ेगा। बट एवरेज इम्पैक्ट क्या रहेगा सर? व्हाट विल बी द एवरेज सिचुएशन या एवरेज उसका सिनेरियो क्या एवरेज रहेगा? इम्पैक्ट ये रहेगा कि अगर मान लीजिए जो कंपनीज है कुल मिला के सब कंपनीज के अर्निंग्स अगर पिछले साल के कंपैरिजन बढ़े हो, हाँ, तो बेसिकली वो मार्केट ऊपर जाएगा। और अगर मान लीजिए वो कंपनी जो सब कंपनीज के अर्निंग्स जो ग्रोथ है वो एक्सपेक्टेशन से कम है, तो वो नीचे जाएगी। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन है, ये इतने आसानी से ये आसानी से इतना आएगा नहीं, ये थोड़ा बैठ के समझना पड़ेगा। yes thank you. एक फॉर द बेनिफिट ऑफ एवरीवन, कैन आई गिव द वन एनालॉजी ऑफ दिस क्वेश्चन? ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था। बिल्कुल। तो श्रीकांत सर, क्या होता है ना, एक रूम होता है, उस रूम में एक हीरा होता है और 10 लोग जो है ना उस हीरे को ढूंढने के लिए जाते हैं, और 10 में से जो है ना वो 8 लोगों के आंख पे पट्टी बंधी होती है, और सिर्फ 2 लोगों के पास ऑप्शन होती है कि वो हीरा मिल जाए। तो चांसेस ज्यादा है हीरा मिलने के दोनों को, या कम है? सिर्फ 2 ही लोग है ना ढूंढने वाले, और एक ही हीरा है, तो चांसेस जो है, प्रोबेबिलिटी जो है दोनों में से एक को मिलने की ज्यादा है। बराबर है? बराबर। अभी इसको थोड़ा उल्टा करते हैं। सेम रूम है, सेम हीरा है, अभी क्या हो गया, सिर्फ 2 लोगों की आंख पे पट्टी लगी हुई है और 8 लोगों की आंखें खुली है, तो एक किसी को मिलने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है या कम है? कम है। क्योंकि ज्यादा लोगों की आंखें खुली है। आज की तारीख में भारतीय इकोनॉमी की हालत वैसी है, बहुत कम लोगों की आंखों पे मतलब आंखें खुली है, और मेजोरिटी लोगों की आंखों पे पट्टी बंदी है। आपको जो है प्रॉफिट मिलने के चांसेस आज ज्यादा है। यहां से आपके 5 साल के बाद अगर आप पूछोगे तो मुझे लगता है कहानी उल्टी हो जाएगी। Okay. That is what I was expecting. I was expecting the same answer. ठीक है? Thank you very much, sir. Thanks a lot for asking this question. Yeah, over to someone. Samir Thakkar is there with us. Sir, you can go ahead, please. Yeah, thanks, Deep. I have one question. I think you told that 60% of market जो है अभी बाकी है, which I think may come into growth in some time. So why can't we focus on those sectors through sectoral funds? Because I have not seen you recommending more of sectoral funds in many of your communications. So can we do that, and how should we do that? Trideep sir can give a little better answer on this. मैंने उसी को ही बोला. I told him only. So one of the issues of a sectoral fund is that you are limited as a fund manager to invest in that sector only. And sectoral fortunes are more volatile than diversified sectors fortune. अगर आप इसका एक सिंपल एग्जांपल देता हूं कि अगर आप प्री कोविड चले जाएं तो वहां पे आप पाइएगा कि द कंजम्पशन सेक्टर वाज एक्चुअली गोइंग थ्रू द बूम एंड इन्वेस्टमेंट सेक्टर वाज एक्चुअली काइंड ऑफ इन द डोल्डम्स। पर्टिकुलरली अगर आप 2014-15 के इर्द-गिर्द देखें, now we are in such a situation that consumption sector is probably going in the downturn, but the investment sector is doing quite well. Now, if you invest in those areas where it is focused on just one sector, then sure, as the earnings come back, that sector will do well, but you are subject to the volatility of the earnings of that sector. अगर आप देखें IT सेक्टर को कोविड के समय में उनकी अर्निंग्स काफी दुरुस्त, earnings were very good and the stocks did phenomenally well, but after that came a time for the last 2 years where earnings they were downgrades. उस समय इन्वेस्टर के लिए जो केवल एक सेक्टरल फंड में होता है, थोड़ा बहुत पेन हो रहा होता है कि एक ही सेक्टर में हम रह गए। इसलिए मैं कह रहा था कि जब मार्केट्स जैसे अभी जहां अभी है ऑल टाइम हाई पे बैठे हुए हैं, सभी सेक्टर कुछ ज्यादा कुछ कम चले हुए हैं, इसलिए आज के डेट में वो फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए जो डाइवर्सिफाइड हो। हम अंडर लेवर्ड या अंडर
वैल्यू सेक्टर में हमेशा ज्यादा ओवरवेट रहते हैं, पर वो काम हम पे अगर छोड़ दिया जाए तो ओवर टाइम जब वो सेक्टर चेंज होता है, वो सेक्टर रोटेशन के समय हम इन्वेस्टर को बेहतर पोजीशन कर पाएंगे एज अपोज टू सेक्टर फंड। ऐसा मेरा मानना है। इसलिए अभी के माहौल में एक डाइवर्सिफाइड फंड बेहतर पोजीशन होगा, लाइक ए फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप, और तो ऐसा आपका मेरा बिजनेस मानना है। साइकिल बाकी जो आया तो हुआ है, सॉरी टू इंटरप्ट यू, आपका बिजनेस करेक्ट साइकिल जो आया हुआ है करेक्ट, जो कि हम अपने हिसाब से मोल्ड कर सकते हैं, जहाँ पे जैसे बिजनेस साइकिल है उस हिसाब से हम मोल्ड करके चल सकते हैं, एज अपोज टू गेटिंग स्टक इन वन सेक्टर। Thank you. सो थैंक यू वेरी मच, इट वाज इंडीड अमेजिंग टाइम। त्रिदीप सर, बहुत मजा आया आपसे बात करके। व्हाट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट इज, हाँ रौनक भाई बोलिए। Good evening. Good evening, नमस्कार, गुड इवनिंग। Trideep sir. So, actually, मेरा question is just on the overall market. So, ऐसा बोला जाता है कि जब भी मार्केट नीचे जाता है तो जो फॉरेन इन्वेस्टर्स है, जो FIIs है, कि वो मार्केट को ज्यादा डोमिनेट करते हैं, और वो लोग अगर बेच के निकल गए तो मार्केट नीचे आ जाता है हमारा। तो मैं ये लॉन्ग टर्म में मतलब आपसे जानना चाहता हूँ सर कि क्या ये FIIs का ही ज्यादा इम्पेक्ट रहेगा मार्केट में हमेशा, या हमारे जैसे रिटेल और हमारे जैसे नॉर्मल इन्वेस्टर्स भी मार्केट को थोड़ा बहुत ऑपरेट करके और बचा सकते हैं, कि हमेशा ये FIIs या बड़े इन्वेस्टर्स पे ही डिपेंड रहेगा मार्केट? तो ये मेरा जस्ट अभी आप ही बचाए हुए क्वेश्चन। हैं, अभी पिछले 2 साल में आप ही बचाए हुए हैं प्रभु। कहने का मतलब ये कि अगर आप पिछले 2 साल का आंकड़े देखें तो आप पाइएगा कि FIIs कंसिस्टेंटली बेचते रहे हैं, और आप HNI, रिटेल, डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड, पेंशन फंड, पैसिव फंड्स, ये कुल मिला के जो डोमेस्टिक फ्लो है, यही मार्केट को बचाए हुए हैं, और ऊपर बचाए हुए ही नहीं है कि ऊपर ले जा रहे हैं। इसका एक और एग्जांपल ये ऐसा है कि पिछले 2 साल में FIIs ने जितने पैसे निकाले वो उन्होंने 2008 में भी निकाले थे, लेकिन जब 2008 में निकाले थे तब मार्केट 70 से 80% गिर गया था। अभी आज के डेट में मार्केट में छोटा सा 5 से 10% करेक्शन आने के प्रॉब्लम, उतना भी नहीं हो रहा, उससे भी कम। सो दैट शोज कि मार्केट का जो दारोमदार है, जो पैटर्न है, वो FII से मूव करके डोमेस्टिक इन्वेस्टर की तरफ चला आया है, जो कि मेरे हिसाब से इंडिया एज एन इकोनॉमी, इंडिया एज इंडियन इक्विटी मार्केट एज एन इक्विटी मार्केट, ये बहुत अच्छा साइन, और ऐसा ही होना चाहिए। ओके, थैंक यू सो मच सर। Thank you very much. So thank you very much. Now it's the last question. Many thanks, Trideep sir. It was बहुत मजा आया आपसे बात करके। आपकी हिंदी वैसे ही बहुत मजबूत है। पूना में लास्ट टाइम बहुत मजा आया था। Even few of the people are here जो पूना में लास्ट टाइम थे आपके साथ। और many thanks for every single question. आपने बहुत अच्छे से एड्रेस किया। Even the thank you very much for everyone. You participated so well and it was really amazing time once again. आप सबके साथ लास्ट मंथ भी बहुत मजा आया था। Again अगले महीने वापस मिलेंगे। With this, thank you very much each one of you for joining this amazing, fantastic and amazing budget and market session. Thank you very much. Thanks a lot. Thanks to Imperial Money. Thank you, Deep, for investing, for calling me for doing this very popular show of yours. उम्मीद करता हूँ कि आपके दर्शकों के लिए मैं कुछ वैल्यू ऐड कर पाया। नमस्कार। You're always happy investing. You're always adding the values in the lives of the people. Crores of the values, you are adding the values in the lives of the people. आपके फोकस ने हमको बहुत पैसे बना के दिए। Every single Edelweiss has been like funds has been done the amazing stuff जब से आपने ज्वाइन किया इधर सर। नमस्कार, आपकी कृपा बनी रहे, इसमें बहुत अच्छा। Thank you very much. Thanks a lot. Bye. Thank you. Thank you. Thanks everyone.